Good morning, student of class 3. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, welcome back to your EVS class, student. Today date is 15 June 2021 and I will start a new chapter, that is chapter number 3. So, before starting the new chapter, let's do little recapitulation what we have done in the previous video. So in the previous video, student, I have completed book exercises and question answer of the chapter. So student, you will note down all the book exercises in the book only. Enough space is given in the book, so no need to write book exercises in the classwork copy. Okay, in classwork copy you will write question answer of the chapter and the diagram which I give you, that you will draw in your classwork copy. Okay, so all of you open page number 10. Open page number 10. This diagram you will draw in your classwork copy. First one is limbs. It is given on page number 10. Okay, this diagram you have to draw in your classwork copy. Limbs, you have to write, you will draw hand and your legs and level it also. Write all the parts of a hands, also hand, and write all the parts of legs. Is it clear? Second diagram, draw sense organs. Is it clear? You have 5 sense organs: eyes, nose, ear, skin and tongue. So draw sense organs. And one more diagram. Okay, these two diagrams you will draw in your classwork copy. One is of a limbs and another is draw sense organ. So you note down this from the board and tick, and then you will draw this diagram in your classwork copy. Now today I will start a new chapter, that is chapter number 3, fun time. So student, what are the important things you will understand after studying this chapter? That is importance of, these are the importance of playing games. Is it clear? Second, outdoor indoor and traditional games.
importance of having a hobby and types of hobbies. So in this chapter we will cover these following points. What is the importance of playing game? Why game are very important, that we will understand. And if we are talking about the games, then it is divided into three category. That is, which type of games we can say outdoor games, what are indoor games, and what are traditional games. Is it clear? नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग ए हॉबी. ठीक है, हम सबकी कोई ना कोई अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोई ना कोई हॉबीज होती हैं. ठीक है, सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द हॉबीज एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ए हॉबीज, और हॉबीज क्या क्या हो सकती हैं, दैट आल्सो यू विल अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर. इज इट क्लियर? Now see student, let's start with a very simple example. You are doing continuous study. Okay, continuous आप पढ़ रहे हो. So you also want to be relaxed and refresh, and this is possible by activities only. ठीक है, हम अपने को रिलैक्स करने के लिए या रिफ्रेश करने के लिए, ठीक है, अगर मान लो आप लोग रेगुलर स्टडी कर रहे हो, ठीक है, आपको स्टडी का एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि आप स्पेशली भी छोटे बच्चे हो. ठीक है, सो आपको कोई भी एक्टिविटीज में आप अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हो तो आपको ज़्यादा बेटर लगता है. ठीक है, जैसे बाई चांस कभी कभी होता है ना, कंटिन्यूस आपके स्टडी पीरियड्स चल रहे हैं. ठीक है, कंटिन्यूस आपके स्टडी पीरियड चल रहे हैं. ठीक है, टीचर बिफोर स्टार्टिंग द क्लास कभी कभी हम क्या कर देते हैं, ऑनलाइन क्लास में भी कभी कभी मैं भी करता हूँ, आपको क्लैपिंग करा दी. ठीक है, हैंड्स अप करा दिए, डाउन करा दिए. तो थोड़ा ऐसा करने से फॉर फ्यू सेकंड आपको लगता है कि, क्योंकि आपको वो करने में अच्छा लगता है, आपको लगता है कि आपके बॉडी में फिर से एनर्जी आ गई, आप एकदम रिफ्रेश से हो गए, एंड देन वी कंटिन्यू विद द स्टडी. सो स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए सबसे बेस्ट क्या है उनके लिए, प्लेइंग डिफरेंट गेम्स. इज इट क्लियर? क्योंकि आप छोटे बच्चे हो. ठीक है, सो आपको अपने आप को रिलैक्स करना है, अपनी बॉडी को एनर्जेटिक रिफ्रेश करना है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट क्या है, प्लेइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम. ठीक है, डिफरेंट गेम्स में इन्वॉल्व करके आप अपने को सबसे ज़्यादा रिलैक्स, इससे क्या है, क्योंकि आप जब कोई भी गेम में एंगेज हो, जैसे आप लोग का गेम्स पीरियड होता है, यू आर वेरी हैप्पी. आपने स्कूल में कभी देखा है, फर्स्ट पीरियड पढ़ाई हुई, सेकेंड थर्ड, बाई चांस ये गेम्स पीरियड डेली नहीं होता है, लेकिन स्टूडेंट्स दे आर वेटिंग फॉर द इंटरवल. They are waiting for the interval because at that time they get time to play with their friends. Is it clear? So बच्चों के लिए, for student
सबसे बेस्ट है अपने आप को इन्वॉल्व करना बाई प्लेइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ए गेम। इससे आप सबसे ज़्यादा रिफ्रेश और रिलैक्स फील करोगे when you are playing games. Now in this chapter, one by one I will explain you when we are talking about the games. So again we have also divided the games also in three categories, that is what are outdoor games, indoor games and traditional games. That thing we will discuss one by one. So playing playing keeps our body keeps our bodies and mind healthy and active. Is it clear? Playing keeps our bodies and mind healthy and active. Okay. Now see student, now one by one see student, आपने कभी फील किया है जब आप पार्क में जाते हो या किसी ग्राउंड में खेलने जाते हो, देखते हो आपका एनर्जी लेवल बिल्कुल से बढ़ जाता है और आप यू इंजॉय, एंड व्हेन यू आर प्लेइंग और व्हेन यू इन्वॉल्व योरसेल्फ इन डिफरेंट गेम्स तो आप इंजॉय फील करते हो। ऐसा होता है ना, व्हेन यू गो इन द पार्क और यू गो इन अ प्ले ग्राउंड एंड स्टार्ट प्लेइंग, सो दैट इज अ फन टाइम फॉर यू। ठीक है। सो स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेटर है, देखो वो तो ठीक है, बॉडी को फिट एंड हेल्दी रखने के लिए हमें एक्सरसाइजेस भी करनी चाहिए, लेकिन आप जिस एज ग्रुप में हो, एक्सरसाइज आर आल्सो गुड टू कीप आवर बॉडी फिट एंड हेल्दी, बट गेम्स आल्सो प्ले अ वेरी गुड रोल इन ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। क्योंकि जब हम गेम खेलते हैं तो हमारे सारे बॉडी पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, हम रन करते हैं, हमारे लेग की एक्सरसाइज हो जाती है, हमारी मसल्स की एक्सरसाइज हो जाती है, वी आर रनिंग, वी आर प्लेइंग, एंड फॉर एग्जाम्पल यू आर प्लेइंग और योर मेनी सेंस ऑर्गन बिकम एक्टिव। आपके बहुत से सेंस ऑर्गन एक्टिव हो जाते हैं गेम्स के समय। ठीक है, जैसे आप कोई गेम्स खेल रहे हो, बाई चांस एक एग्जाम्पल क्रिकेट का ही ले लो, तो इफ द बॉल if you hit the ball, so firstly you will see the ball with your eyes, then only you can hit the ball, and if you hit the ball while running you have to take run. So at the same time when you involve yourself in different games, so many organs of your body become active. Is it clear? And playing is also a very good exercise for the body. That is, we always talk about all around development of the child, and all around development of the child is not only study, it involve physical activities also. ठीक है, इसमें सिर्फ स्टडी नहीं है, इसमें फिजिकल एक्टिविटीज हैं, इसमें भी आपको अपने को क्या करना है, इन्वॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि व्हेन वी आर प्लेइंग गेम्स, सो you are doing lot of exercises, especially small kids, you run in the ground, many different games you play, so इससे आपके बॉडी पार्ट्स की भी एक्सरसाइज हो रही है। ठीक है, नाउ सी स्टूडेंट, नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द आउटडोर गेम्स, ठीक है, अब हम आउटडोर गेम्स की बात करते हैं। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द outdoor
So outdoor games are those games which are played in an open ground. ठीक है, ओपन ग्राउंड में ज़्यादा जगह चाहिए आउटडोर गेम्स को प्ले करने के लिए. ठीक है, ओपन फील्ड्स में हम लोग आउटडोर गेम्स खेलते हैं. ठीक है, वी प्ले आउटडोर गेम्स इन ओपन एरिया और ओपन फील्ड फॉर द आउटडोर गेम्स. सो और you can also, if you want to write, you can also write the games that you play outside home or called it outdoor games. Okay, so the games that you play outside home are called it outdoor games and we play this game in the ground. ठीक है, जैसे आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है, तो एट दैट टाइम आपके आईज एक्टिव हैं. इफ यू आर राइटिंग समथिंग, यू आर राइटिंग विद योर हैंड. ओके, बट गेम ऐसी चीज है जिसमें हमारे बॉडी के लगभग सारे पार्ट्स एक्टिव हो जाते हैं. इज इट क्लियर? सो दैट इज द रीजन गेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द किड्स. स्टूडेंट्स के लिए गेम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इज इट क्लियर? अब देखो आउटडोर गेम्स की हम बात करते हैं तो द गेम्स दैट यू प्ले आउटसाइड होम आर कॉल्ड इट आउटडोर गेम्स. फॉर एग्जांपल क्रिकेट. And another specialty of the outdoor game is that in this you required more number of players. ठीक है, आउटडोर गेम्स में जैसे अभी इंडोर गेम भी आपको बताएंगे, कुछ गेम ऐसी होती हैं जो 1-2 पर्सन ही रिक्वायर्ड होते हैं, बट व्हेन यू आर प्लेइंग द आउटडोर गेम्स यू रिक्वायर्ड मोर प्लेयर. ओके, वन बाय वन वी विल डिस्कस द नेम ऑफ द गेम्स एंड दैट सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. Okay, for example, let's take the example of a cricket. So student, cricket is played between the two teams. ठीक है, cricket is a game which is played between the two teams and each team have cricket played between two teams. Is it clear? Two teams, cricket played between two teams. Number of players required are 11 in each. ठीक है, cricket is a outdoor game, student, and it is played, cricket is played between two teams. Okay, and number of players required are 11 in each team. It means how many total players in both the team? That is 22. ठीक है, cricket is a outdoor game. Is it clear? Cricket is a outdoor game. It is played between two teams and number of players required in each team is 11. So this is a game of a cricket and it's a outdoor game. Is it clear? And the next important thing is that you need equipments also. ठीक है, क्रिकेट खेलने के लिए आपको
you need bats चाहिए. Is it clear? You need bat, pads, gloves, ball or stumps. So cricket is a outdoor game. ठीक है. Playing keeps our body and mind healthy and active. We are active at that time. Now when we are talking about the outdoor game, so we are talking about the cricket. Cricket is played between two teams and each team have how many number of players in each team? That is 11 player. Okay. And to play cricket we need equipments means. Okay. cricket खेलने के लिए हमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं? बैट, पैड्स, ग्लव्स, बॉल, स्टंप. देखो ये मैं इसलिए तुम्हें बता रहा हूं क्योंकि अभी हम लोग वी विल डिस्कस सम ऑफ द आउटडोर गेम्स इन विच वी डोंट रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स. ठीक है. अभी हम लोग कुछ ऐसी आउटडोर गेम की भी बात करेंगे जिसके लिए हमें ये सब चीजें रिक्वायर्ड नहीं होती हैं. क्रिकेट के लिए आपको बैट चाहिए क्योंकि बैट्समैन डू बैटिंग विद द बैट, बॉलर डू बॉल. ठीक है. ग्लव्स फॉर द विकेट कीपर, स्टम्प्स, ये विकेट होती है स्टम्प्स. इफ द बॉल हिट द स्टम्प देन द प्लेयर इज आउट. ओके. सो वी नीड बैट, पैड, ग्लव्स, बॉल, स्टम्प. सो दीज आर द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड टू प्ले अ क्रिकेट. And do you know about this game cricket, student? Cricket is the most popular game of India because maximum people are playing cricket. अगर आपसे कोई पूछे कि which is the international game of our country, that is India. So international game, national game of our country is hockey. National game of our country is hockey, but in India maximum game, the game which is played by maximum number of people, that is most favorite game is cricket. सबसे ज़्यादा फेवरेट क्रिकेट है. एंड एज यू नो डैट सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, एमएस धोनी, सहवाग, युवराज सिंह, दीज आर द स्टार प्लेयर्स ऑफ द गेम cricket. Is it clear? So cricket is the most popular game of our country. So this is all about cricket, and cricket is a outdoor game because we play cricket in a open area, in a big ground. ठीक है. क्योंकि देखो बेटा, if you start playing this game inside your house, your parents will shout. ठीक है. क्योंकि घर में बहुत से ऑब्जेक्ट्स हैं, बहुत से थिंग्स हैं घर में. इज इट क्लियर? विद द बैट और विद द बॉल द विंडोज ग्लास ब्रेक, और देयर आर मेनी अदर थिंग्स इन द हाउस विच डैमेज, और इवन इनसाइड योर हाउस यू कांट रन. ठीक है. अपने हाथ घर के अंदर आप इतनी तेजी से रन नहीं ना कर सकते हो, नहीं तो आपको चोट लग सकती है. इज इट क्लियर? तो दैट इज द रीजन, और देखो कितने सेफ्टी से इस गेम को हम खेल रहे हैं. बैट्समैन ने पैड भी लगाए हैं. ठीक है. बैट्समैन पैड भी लगाता है क्योंकि वो बॉल बहुत हार्ड होती है. इज इट क्लियर? तो पैड का यूज कर रहे हैं. विकेट कीपर ही स्टॉप द बॉल. ठीक है. जो बॉल हिट नहीं होती है, दैट बॉल स्टॉप बाय द विकेट कीपर. तो व्हाट ही इज यूजिंग ग्लव्स. तो इसका मतलब ये गेम डेंजरस भी है. ठीक है. अगर हम इसे ऐसी जगह में खेलेंगे, स्मॉल जगह में खेलेंगे, ओपन एरिया में नहीं खेलेंगे, तो इट मे हर्ट. ठीक है. इससे हमें चोट भी लग सकती है. तो दैट इज द रीजन इस गेम को किस कैटेगरी में बेटा रखा गया, क्रिकेट को किस कैटेगरी में रखा गया, आउटडोर गेम्स में. ठीक है. किस कैटेगरी में क्रिकेट को रखा गया, दैट इज आउटडोर गेम्स. Is it clear? Because it is safe in a open field
area only, not inside the house. ठीक है. Now the next outdoor game that is football. Next outdoor game is football. So this game is also played between two teams. Is it clear? This football, this is also played between two teams, and number of player in each team are 11. Each team 11 players. ठीक है. ईच टीम 11 प्लेयर्स मीन्स टोटल नंबर ऑफ प्लेयर कितने हुए इसमें? टोटल 22. टोटल प्लेयर्स आई एम राइटिंग इन शॉर्टकट ना, तो पूरी लाइन कहानी की तरह नहीं लिख रहा हूं, शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं. टोटल प्लेयर्स इक्वल टू 22. सी फुटबॉल इज आल्सो अनदर आउटडोर गेम. फुटबॉल भी कैसी गेम है बेटा? आउटडोर गेम है. ठीक है. प्लेड बिटवीन टू टीम्स. ठीक है. ईच टीम 11 प्लेयर्स होते हैं और टोटल प्लेयर्स जो फील्ड में प्ले करते हैं दैट इज 22. और कुछ एक्स्ट्रास भी होते हैं, वो सारी गेम्स में होते हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, जैसे अभी क्रिकेट बता दिया, तो क्रिकेट में टोटल 16 प्लेयर्स होते हैं एक्टिव एट द टाइम ऑफ मैच. इन दैट 16 ओनली 11 प्लेयर्स आर एक्टिव. ठीक है. In the same manner, there are some extra players also in the football also, but active player in both the team that is 11. It means 22 player play in the field. Okay. Now, so what are the equipment required for the football? Football के लिए फुटबॉल की एक बॉल होती है. Is it clear? और यू कांट प्ले फुटबॉल विदाउट शूज़. वो भी एक स्पेशल शूज़ होते हैं. नॉर्मल शूज़ पहन के आप नहीं खेलते हो. ठीक है. जो प्लेयर्स के आते हैं. सो दिस इज आल्सो ए आउटडोर गेम. तो आप सोचो कि इस गेम को हम घर में खेल सकते हैं, तो डेट इज नो. ठीक है. सो एंड हाउ वी प्ले दिस गेम? इन दिस गेम वी हिट द बॉल विद आवर लेग. इस गेम में हम बॉल को कैसे हिट करते हैं बेटा? इन दिस गेम वी हिट द बॉल विद आवर लेग. लेग से हम बॉल को क्या करते हैं? हिट करते हैं. तो दैट इज द गेम ऑफ ए फुटबॉल. एंड द टीम विच स्कोर मैक्सिमम गोल, दैट टीम विन द मैच. इज इट क्लियर? एंड अनदर important thing is that all the games which we are playing, so in all the games having some rules. जितनी भी गेम बेटा हम प्ले करते हैं सब में रूल्स होते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू रूल वी प्ले द गेम. अगर रूल्स गेम में नहीं होंगे तो हम लोग फॉल्स गेम खेलेंगे. ठीक है. सो एवरी टीम फॉलो द रूल एंड वी शुड प्ले द गेम इन डिसिप्लिन. इज इट क्लियर? We should play the game in a discipline and we must follow the rules of the game. ठीक है. हमें जो भी गेम होती है उसके रूल फॉलो करने चाहिए. और देखो, when you are playing outdoor games, what is the benefit of this game? बेनिफिट तो ये है ही by playing this type of a game. ठीक है. सो ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड तो हो रही है. इसके साथ साथ देखो, इफ़ यू आर गोइंग आउट फॉर द आउटडोर गेम्स, तो आपके बहुत से फ्रेंड्स भी बन जाते हैं. ठीक है. मान लो आप क्रिकेट खेल रहे हो, 22 प्लेयर्स, सो 22 फ्रेंड्स हो गए आपके. आप अपने को हटा लो तो 21 फ्रेंड्स हो गए. सो व्हेन वी गो टू प्ले आउटडोर गेम्स, इवन वी हैव more and more new friends also while playing outdoor games. Okay, we will continue the same topic next video. Thank you, student.